A warm welcome to all the participants. On behalf of Captify Consulting, I welcome you all to the fourth quarter and financial year 2021 post-result conference call of Mac Power CNC Machines Limited. Today on the call with us, we have from the management team of Mac Power, Mr. Rupesh Mehta, Chairman and Managing Director, Mr. Rajnikant Raja, Chief Financial Officer, and Mr. Sagar Rajaguru, Company Secretary. Please note that this call is being recorded. Also note that this call is primarily to discuss the performance of the recent completed quarter and to talk about the business and industry growth prospects in general and specific to the company. The management will refrain from giving any specific forward-looking guidance. I will now invite the CMD, Mr. Rupesh Mehta, to give his opening remarks, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Good evening, friends. Hope you and your family are healthy. I am Rupesh Mehta, MD and Chairman Mac Power CNC Machines Limited, hosting this meeting with my team. I would like to give you some brief about business of machine tools. First of all, what is machines? CNC machines. CNC machines, I think, is normally used for all kind of the manufacturing segments like aerospace, agriculture, automobile, defense, everywhere machines is required. Previously, all the manufacturing segment was dependent on a conventional method, but last 2 to 3 decades, India developed the computerized numeric controlled machines, which is used for, as I told you, for all kind of the manufacturing industry. So that's why government used this word that machine tools is a backbone of manufacturing segment. So we are in the machine tools field since last 25 years. I have some figure about machine tools industry's production and consumption. This data is we got from the Indian Machine Tools Association website. So totally our consumption of machine tools in 2018-19 was 23,500 crore. And India is producing 11,500 crore. 13,000 crore still we are importing. This figure is very good compared to Ministry of Heavy Industries and Indian Machine Tools because a few years back we are importing almost 75 to 78% and we are manufacturing only a few percentage in India. But last 8 to 10 years, India developed lots of iron machines and they increased their production capacity also. This industry's overall growth in the last decade approximately is 25% CAGR. So this industry is fastest growing industries, and there are few players in this machine tools building, CNC machine tools manufacturing. Less than you can say 1 digit people, less than 1 digit people, but more than 7 to 8 people are manufacturing 90%. And Mac Power stand in this top 5 category. Previously, our production capacity was only 600 machines, and now after this capex, our capacity is increased by 1,000 to 1,200 machines. We have a wide range of the product basket. All the segments we are covering, like aerospace, defense, automobiles, surgical equipments. And I'm happy to announce that we are keeping your company a debt-free company, which is always our motto. At present,
as per the 31st March data, we have 663 machines. The value of the machines is 112 crore with the advance amount of 6 crore, and government order with the 13.45. Government means education. Now all the IIT and ITA also purchasing the CNC machine to train their students. So we have a 112 crore domestic and 13.45. So main thing to grow these industries, 25% CAGR, is government's policy is also a benefit for these industries. Now, if our users is purchasing the machine, central government should be giving a 15%, a subsidy for capital goods linked subsidy. In Gujarat or so many other states also giving the 10% subsidies, so that is additional, and interest subsidy by 7%. So almost after GST, demand is boosted up because so many tier 3 and tier 4 people who doesn't have a excise registration, they lost the excise duty, it is added in their cost. But now after GST, they can get the 100% tax free, almost 75% interest they are getting from government, and 25% subsidy they are getting from the various government departments. Right now we have a 580 workforce, including mostly qualified engineers. 115 people are working in 37 cities across India for sales and service. So this is our overall overview about the MacPower and market. So our top line company name is Ace Designer Group. They crossed 2,000 crore in this year. Second, LMW, Bharat Freeze Warner, Jyoti CNC, and MacPower. So mainly 9 companies are capturing 90% market share. What is the difference between these companies, all 4 companies, and MacPower? We have all the product range, which took too much time to develop in the R&D department. So we have all the product basket. We have each and every area, we have our distribution network, our team for sales and service. So still there is a lots of gap. Like still almost 50+ percentage machines are coming from other countries, which India is not producing. So as I mentioned in my speech, that we are creating the new group Nexa, where we will focus the higher-end machine like HMC and VTL. All these 4 competitors develop this machine also, but they are not focusing because domestic market is a huge market. Right now, delivery time is 2 months to 6 months, depends on the models. So everybody is struggling for the deliveries. So main challenge is to deliver the machine on time. And this industry is required lots of engineering, technology backgrounds. So that's why there is an entry barrier. A few players are in this field because of this highly technical skill required to manufacture this kind of the machine. We have a robotic automation and industrial 4.0 also, which is upcoming market for this segment, where there is no human touch. We already supplied a few machines, CNC machine along with the robotic automation. So that is the future product also in our baskets. So challenge is to fulfill the demand is a component. We have so many variants, like more than 100 different kind of the models and segments, vertical legs, HMC, DMC, vertical machining center, which used for the die and wall sector, and turning machines and tunnel center. So there are so many segments and they have a different kind of the models also. So we have to maintain the inventory
different kind of the component we have to purchase, we have to produce. Right now we are manufacturing almost 65 to 70% component in-house. So we have to increase the capability of vendors and in-house for the future to meet the future demand. We are working on this, and in last quarter, if you just seen that we almost utilize our 70 to 75% capacity in December, January, February, and March quarter. So in future, we are thinking for the further expansion to meet this demand. Normally, the advance cycle and payment cycle is 100%. They have to give the payment. After that, they can receive the machine only. And with advance only, we book the orders. And this order is the pending orders only. But every month, our orders book is 10% to 20% plus. Whatever the machine we delivered, our 36 cities employee book the machine every day, every week, and every month. So every month we have a backlog of 10 to 20%. In that we are focusing on tier 3 and tier 4 clients who require the 1 or 2 or 3 machines. But tier 1 and tier 2 who require the 50 to 100 machine in a bulk, we are not able to deliver the bulk in this condition. Once we will not increase the production and production capacity. So in future we can capture this market also, tier 1 and tier 2, and we are working on this. I would like Mr. Vinay, if anybody have any questions, we can start question and answer. It will be more better to understand this business. Sure, sir. Sure. So I would request all participants, whoever wish to ask a question, can use the option of raise hand next to your name. And sir, would it be possible for you to bring the mic closer to you to allow them to listen a bit more closely? Thank you, sir. We'll take the first question from Shriram Rajaram. You may go ahead, Shriram. Thanks, Vinay. So I have a couple of questions, sir. One is, if I look at your, the applications of the CNC, it goes into general engineering, auto, and other sectors. So it would be helpful if you could give a order book breakup of these 4 sectors which you cater to. First of all, there are so many. I think nobody have this kind of data where they are utilizing this machine. Normally, suppose we have one office in Jaipur, but we know that this Jaipur market is mainly for the bearing, NBC. They are working for the NBC bearings. So we assume, but exactly we cannot, we cannot know that where they will use this kind of the machine. Mumbai is for the die and mold. So once they are buying the VMC machine, we can assume that they will use for the die and mold sector. But we don't have a, because there are so many applications, general engineering, pumps, valve, bearing, aerospace, aeronautic components, sometimes gas burners. We also surprised what kind of the component they are manufacturing with these machines. So yes, we can distribute this segment in turning machines order, vertical machining order, HMCs order, but the applications is very difficult. And second thing is government order. In government order, if it is in education sector, for it is for the training, it is for defense, then it is for the manufacturing of defense component, and it is from the aerospace, then they will use for the aerospace component. Okay, sir, you mentioned Mumbai is for which? I couldn't hear you properly. Exactly, Mumbai का जो है iron mold के लिए iron mold. Okay, iron. Okay. Iron molds, वहाँ पे plastics की dies बनती है. तो मुंबई की कोई VMC सप्लाई होती है तो वो डायन मोल्ड सेक्टर में ही ज्यादा जाती है. उनकी फीचर से भी हमें पता चलता है कि उनको थोड़ा हायर एंड कंट्रोल्स चाहिए फिनिशिंग के लिए. तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये मशीन से वो डायन मोल्ड सेक्टर में जा रही है. Okay, sir, then how many distributors do you have across the country? If you can give some idea, because I believe you're now selling through distributors, right?
We have we have our 90% business we are getting through our paid employees. Five distributors we have where we are getting only 10 to 15%, not more than that. But where the distributor is very strong, the billing cycle is directly with the company. They are providing only service and sales with the overhead commission. But the ratio is very less, 10 to 15%. Other business we are doing directly with our employee, 115 sales and service employee. Okay. So you mentioned that the new product called Nexa, so which is substituting HMC and VTL. So if you could explain what is HMC, VTL, and what is this Nexa about, it will be very helpful. Generally, my team, 150 people who are dealing with the turning machines and VMC, they are trained and they are very much comfortable to sell this kind of machines, turning machines and VMC machines. But iron machines like HMC, where the market is also a niche market, and VTL machines. So they cannot focus. Every day they have to meet 5 to 6 customers, and mostly or every alternate day they are booking one machine. So they are very much busy with the turning machines and vertical machines market because they have to visit the customer's place once machine is unloaded. They are giving the training also. So we create this Nexa group like the Maruti model, where this sales group will focus only on iron machines like HMC and VTL, used for this horizontal machining center and vertical machining center is for the pumps and valve and boring, big boring machines. The approximately horizontal machining cost is, starting cost is nearly 1 crore rupees. So we are creating this Nexa to sell the higher end machines. This Nexa is not the name of product, is the internal Nexa group who will focus only on higher end product, not for the turning and VMs. Okay, that's very helpful, sir. Lastly, just one question before I join the queue. Sir, what is the, so now we are transiting into EVs. So EVs would mean fewer parts for automotives. In that case, less of forging, casting, if I understand correctly. So what is the impact of CNC industry with respect to automobiles when EV comes into place? Only engine parts will remove. Rest of the part like wheels and shaft and transmissions, everything will be remain same. So only engine will be removed, but some battery also required, some transmission part also. And there are so many other areas where we are not focusing right now because we are not manufacturing a big aerospace component also. So we don't think that there will be much effect if this automobile segment is changing their engine method. And as you know that is not that much easy to convert because so many developed countries is not yet developed this battery operated. Then India is still too far from that. But we have, I told you before that there are so many applications. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, just to add to what Sriram was asking, would it be fair to assume that other than the engine part, almost every other part or the vehicle manufacturing would require a CNC machine? Yeah, definitely. It's required the CNC machine. Transmission, gearbox, the wheel, alignment, bearings, everything. There are so many applications. Like in textile industry is also required. Mobile industries, which is the upcoming market, this mobile is cut with the CNC machines. Plastic bottle, dye molds, plastic items, everything. So there are so huge applications for this utilization of machines. There is no single segment, there is no single customer. Sure, sir. So before I go to the next participants, I'll take one question from the chat window. Can you talk a bit about the extent of raw material, that is steel price inflation year on year for you? And has that influenced the ordering of customers? Exactly, we are getting the order with the advance, with the terms and condition, price can be the change. But normally we have a 3 to 4 months
inventory cycles because processing of the component is take a long period, and we have our pending orders with our suppliers. So there is no much more effect with the existing pending order, but yes, in future it will affect. So all the machine tools will increase their price, and manpower also increase their price according to the raw material price and overhead price. So we also change the price on time to time. Last we changed the price on January. Again we are changing from tomorrow. Okay, sir. We'll take the next question from Agastya Dave. Agastya, you can go ahead. Thank you very much, Vinay bhai. Thank you, sir. Mehta sir, मेरे पास काफी questions हैं, so I'll go one by one. Sir, first is sir, ये सर हमने कितनी number of machines की? Year 21 में and फिर quarter 4 में? Sorry, Agastya, what's the question? Number of machines that they have sold. For number of machines exactly, I will come back to you. They are checking. हम लोग एक ऑफिसर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाते हैं, ये लोग चेक कर ले. Sure. करोड़ का वो मंथ में वो क्वार्टर में अचीव किया. क्वार्टर का पूछ रहे हैं ना, लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का पूरा साल का. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, नॉट एबल टू हियर. फोर्थ क्वार्टर का मैं अभी कैलकुलेट कर रहे हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्शियली आपने थोड़ा सा कवर किया, वर्किंग कैपिटल को लेके है. तो ये इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स एंड एडवांसेस, सर ये कैसे मूव करता है अपना, क्योंकि इन्वेंट्री जो हम रखते हैं वो काफी बड़ी है एंड लास्ट 2 साल में वो बढ़ी भी है. सो जनरली सर कैसे उसको हम देखें कि आप स्टील प्राइसेस बढ़ रहे थे, इसकी वजह से आपने ज्यादा स्टील खरीद के रखी, या इस साल सेल्स कम हुई है बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर इंपैक्टेड था, उसकी वजह से ब्लोटेड लग रहा है इन्वेंट्री. सर इन्वेंट्री के ऊपर कुछ बताइए कि आगे जाके इन्वेंट्री लेवल्स कितना आप रखते हैं बिजनेस में, एंड जो एडवांसेस रहते हैं और जो रिसीवेबल्स रहते हैं सर उनका कैसे मैनेजमेंट होता है. नॉर्मली इन्वेंट्री जो है हमारी वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बेस, हम लोग क्वार्टरली या 6 मंथ या ईयरली प्राइस फिक्स करके ही ऑर्डरिंग करते हैं, और उनके साथ हमारा पेमेंट टर्म्स जो होता है नॉर्मली वो क्रेडिट पे है, जिसमें 3 मंथ्स टू लेके 6 मंथ तक आपको वो लोग क्रेडिट के बारे में नहीं पूछते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कंपोनेंट की वेरिएंट है, तो जो सप्लायर है उनको भी कंफर्टेबल रहता है कि आप 3 मंथ्स का 2 मंथ्स का एक साथ में लो, और उनके लिए आपको पेमेंट देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है. आप उनको रेगुलर पेमेंट 3 मंथ 6 मंथ्स के बीच में दे सकते हो, जिससे कि उतने कंपोनेंट पे फोकस नहीं करना पड़े. क्योंकि मैंने हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं एवरी डे वो ऑर्डर की नहीं है, हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो लिक्विडिटी की नहीं है, फंड की नहीं है. हम लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए. राइट. एक मशीन पे अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 कंपोनेंट्स लगते हैं तब एक मशीन बिल्ड होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, उनको शेड्यूल्स में ही दे देते हैं कि चलो 50% कंपोनेंट जो है उसको 2-3 महीने, जिसकी बहुत सारी वैल्यू भी नहीं है, और उनको पेमेंट भी आपको इमीडिएटली नहीं देना है. तो हम लोग को इन्वेंट्री इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन को गियर अप करना है, और कुछ हद तक हम लोग वही जो ये प्रोडक्शन जंप कर पाते हैं उसका रीजन हमारे पास पड़ी हुई इन्वेंट्री भी है. क्योंकि आप फोरकास्ट इतना नहीं कर सकते हो कि आपको GX 100 मॉडल जो है वो बेरिंग में यूज होता है, वो 10 भी आ सकता है, वो 40 भी आ सकता है. डायमंड सेक्टर से आपको 50 मशीन भी आ सकता है. तो आपका अनसर्टेनिटी ऑफ मॉडल्स का जो बुकिंग होता है उसमें इन्वेंट्री ही आपको वो रियलाइजेशन बिलिंग साइकिल पे कर सकते. इसलिए इन्वेंट्री जो है वो हमारे लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए गोल्ड में मानता हूँ, कच्चा गोल्ड ही है. क्योंकि उसका पेमेंट तो आपको करना नहीं है, आपको जिस हिसाब से बिलिंग होता है वही हिसाब से ही आपको, क्योंकि आपके सप्लायर को वॉल्यूम चाहिए जिससे कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बचा पाते हैं, और अनसर्टेनिटी का मॉडल्स का ऑर्डर भी आता है तो हम उसको एग्जीक्यूशन और रियलाइजेशन कर पाते हैं. समझा सर, आपका लॉजिक समझा सर. सर इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ये था कि अभी आप करीबन 110 करोड़ के लेवल पर है सेल्स में,
एंड उसमें आपका जो इन्वेंट्री है आपने 61 करोड़ रखा है, तो ये 61 करोड़ का इन्वेंट्री पर व्हाट इज द मैक्सिमम सेल यू कैन अचीव, एंड उसके बाद अगेन द इन्वेंट्री विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। उसमें आप समझो कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स के लिए भी इनफ है, सफिशिएंट है, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ मटेरियल है जैसे कि हाइड्रोलिक पावर पैक का, वो हैंड टू माउथ आता है कि 5 आया फिट हो गया, 5 आया, आपका सेकंड वेंडर जो है वो दिल्ली में बंद पड़ा है, क्योंकि तो वो हिसाब से हम आप समझो कि हमें चैलेंजेस जो है लड़ना है वो कुछ 10 या 15 कंपोनेंट पे ही लड़ना है, बाकी की जो 3 मंथ टू 6 मंथ के लिए आपके पास स्टॉक में पड़ी है। तो कुछ जो चैलेंजेस आती है कि इंडिया का ही कैपेसिटी नहीं है स्पिंडल बनाने का, से फॉर एग्जांपल एक स्पिंडल आता है जो मशीन का हार्ट है, तो वो स्पिंडल बनाने की इंडिया की कैपेसिटी जो वेंडर्स है एक या दो ही है, उसकी खुद की कैपेसिटी 150 से ज्यादा पर मंथ नहीं है, तो आपको हैंड टू माउथ बेक करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए बैकअप प्लान में खुद स्पिंडल बनाना चालू कर दिया और नेक्स्ट 45 स्पिंडल हमने इन हाउस बनाया, वो का डबल करके हम लोग इन हाउस करेंगे, क्योंकि हमें जो चैलेंजेस है उसमें मैंने बताया कि कुछ कंपोनेंट की चैलेंजेस ज्यादा है। कंपोनेंट हमारे वेंडर ने डेवलप किया या फिर हमने किया तो प्रोडक्शन में जंप आ सकता है। एक्चुअली असेंबली टाइम है वो बहुत निगेटिव, हमारा एक मशीन असेंबल करने के लिए 1.5 मैन डेज लगता है खाली, असेंबली टाइम बहुत नहीं है। कंपोनेंट की प्रोक्योरमेंट है, हमारे वेंडर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर वही चीज हम बनाए, जैसे कि हमारी अदर कंपनीज है वो क्यों प्रोडक्शन कर पाती है, मंथली 400 से 600 मशीन बनाती है, लेकिन उनकी कैपेक्स के हिसाब से सारी कंपोनेंट की कैपेसिटी उन्होंने ग्रेजुअली अपने यहाँ पे इन हाउस डेवलप की है और उस दिशा में हम भी जा रहे हैं। अब जो चीजों पे हम वेंडर पे डिपेंड है उसकी भी हम हैंड टू माउथ वेट करना पड़ता है, और वो जब आती है तो इमीडिएटली फिट कर लेते हैं हम लोग। तो मेहता सर, ये आप कंट्रोल पैनल्स जो रहते हैं सीएनसी मशीन के, वो भी आप इन हाउस बना रहे हैं या वो आप कहीं से खरीदते हैं कंट्रोल पैनल्स? कंट्रोल पैनल्स, एलएम गाइडरेज और बॉस स्क्रू, ये तीन चीज जो है वो हार्ड है मशीन का, वो वर्ल्ड वाइड बनाने वाली 3 कंपनियां हैं। जैसे कि कंट्रोल पैनल जो आता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेटिक कंट्रोल, सीमेंस होगा, वो सीमेंस बनाता है, फानुक बनाता है जापान का, और मित्सुबिशी बनाता है। वर्ल्ड की जो पूरी मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज है वो इन तीनों के ऊपर ही रिलाई करती है। ओके 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 ओके। तो 100% कंपोनेंट कोई कंपनी नहीं बना पाएगी, इसमें एलएम गाइडवेज जो है वो ताइवान से और जापान से आता है, बॉस स्क्रू भी वहां से ही आता है, इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है वो बनाती है 3 कंपोनेंट, और सारी वर्ल्ड की मशीनों में यही एलएम और यही बॉस स्क्रू और यही कंट्रोल लगता है। तो हमारी मशीन जो है वो वर्ल्ड की जो मशीन आती है उसके आसपास ही है, ज्यादा हम दूर नहीं है। और एक सर्वे के हिसाब से तो हमारी मशीनों की रिलायबिलिटी जो इंडियन मशीन टूल्स से 500 मशीन पे सर्वे किया, उसमें इंडियन मशीन मोर बेटर देन इंपोर्टेड मशीन्स, और उनको कंपोनेंट की सर्विस और उनके बाद उनको जो ब्रेकडाउन है वो और उनकी कॉस्ट, तो इसीलिए में ये जो इंपोर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट्स जो डेवलप करते जाएंगे, वैसे भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज में काफी पोटेंशियल्स है। लेकिन चैलेंजेस जो है वो लिक्विडिटी का या वर्किंग कैपिटल का या ऑर्डर्स का नहीं है, हमें इंटरनली लड़ना है, हमें कंपोनेंट्स बना के क्वालिटी वाइज, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर और प्लेन जैसा है, एक भी मशीन खराब बना तो आपका मार्केट से नाम निकल जाता है। वो हमने कर लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर लिया, हमने हमारी एक सर्विस की एक पूरी फोर्स तैयार कर ली, हमने प्रोडक्ट बास्केट भी कर लिया है, अभी हमने डाल के कैपेसिटी भी डबल कर लिया है। तो ग्रेजुअली हमें वेंडर्स डेवलप करने हैं जो ये हमारे लिए कंपोनेंट बनाए या फिर इन हाउस करना है। गॉट इट सर। सर एक और क्वेश्चन सर, ये जो हम अभी नेक्सा आपने जो एक्सप्लेन किया हाई एंड मशीन्स में भी जा रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड सर अपना रियलाइजेशन पर मशीन और मार्जिन्स का ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा सर? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3-4 चीजें एक साथ हो रही है कंपनी में, राइट? एक, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट इन हाउस बना रहे हैं,
दूसरा आपका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुका है एंड अब यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज भी आएगा। और तीसरा जो है आप बेटर मशीन्स भी बना रहे हैं, हाई एंड मशीन बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन एंड मार्जिन उसकी वजह से भी बढ़ेगा। तो ये चीज पे आप कुछ कमेंट कर सकते हैं सर कि मार्जिन का ट्रेजेक्टरी कैसा रहेगा, और कुछ डिटेल दे सके सर इसके बारे में, हाउ टू लुक एट इट, व्हाट इज आर, कितना आपका टारगेट कितना है सर लॉन्ग टर्म में, किस लेवल तक आपको पहुंचना है एबिटा मार्जिन सर? एग्जैक्टली मैं आपको मशीन्स की बात करूं तो जो आयरन एंड प्रोडक्ट है जो मैं बता रहा हूँ नेक्सा में हम डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने जा रहे हैं, उस मशीन्स को हमने ऑलरेडी 5 इयर्स पहले ही डेवलप कर लिया था ओनली फॉर डिफेंस। हम लोग ये मशीन्स को डिफेंस को ही ज्यादा देते थे क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में हमारी कैपेसिटी जो थी अपनी रेगुलर प्रोडक्शन की वो डिस्टर्ब करके ही बनाने का था। अगर बड़ा मशीन नेक्सा का बनाते हैं तो आपका रूटीन 5 से 6 मशीन कम हो जाता है, असेंबली का टाइम बढ़ता है। तो अभी हम जो ये ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं वो फ्यूचर बिजनेस के लिए कर रहे हैं। हम उसको इतना फोकस नहीं कर रहे कि इंडिया का एचएमसी का मार्केट 650 मशीन का 650-700 करोड़ का है तो हम उसमें से 10% लेंगे। हम ये मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट में ये प्रोडक्ट को एक एक्सपेरिमेंट पे हमने गवर्नमेंट को 25-30 मशीन हम पास्ट में दे चुके हैं। तो एक एरिया में जाके हम फ्यूचर में जो अगले 3 साल में जो ग्रोथ करना चाहते हैं उसके ट्रायल है कि हमारी, क्योंकि ये चीज सभी है वो ओवरनाइट नहीं होती है, इसलिए हमारी सेल्स की फोर्स, हमारी सर्विस की फोर्स और हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी। तो ये प्रोडक्ट जो हम नेक्स्ट साल कर रहे हैं उनको हम लोग हर एक एरिया में थोड़े थोड़े मशीन ही दे रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके लिए अलग कोई फैसिलिटीज डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ही इसको बना रहे हैं अभी, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये मार्केट से रिव्यू, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और बाकी की चीजें हमें जो चेंजेस करना है वो मिल जाएगी। और जो EBITDA की और फ्यूचर की बात है वो आप जानते हैं कि हम ज्यादा ये लेवल पे इस तरह की बातें मैं करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। फिर भी विनय जी आपको अगर उसके बारे में अगर कुछ डिस्क्लेमर का इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन सेगमेंट में मैंने जैसे कि बताया है कि 25% का ग्रोथ किया है पूरे मशीन टूल्स में। मैक पावर का लिमिटेशन यही था कि कैपेबिलिटी ऑफ इश्यू, और वो हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। और आगे का हमारा फ्यूचर बहुत बढ़ाने का है क्योंकि जो डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो फुलफिल तो हमें ही करनी है। हम लोग 9 लोग हैं उसको ही करनी है क्योंकि लास्ट 10 साल में भी एक नया प्लेयर नहीं आया है। ऐसा आई टोल्ड यू कि इतना इजी नहीं है ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करना, इट टेक्स टू मच इयर्स और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर है। तो ये जो डिमांड आएगी वो हमें ही पूरी करनी है। हम जो लेस देन सिंगल डिजिट प्लेयर है उनको ही पूरी करनी है। और इसमें हमारी 4 कंपनियां जो टॉप लाइन है उन्होंने तो ऑलमोस्ट काफी कर लिया है और दे आर वेरी नियर टू 2000 to 1000 करोड़। तो मैक पावर भी वो दिशा में ही जा रहा है जिसमें प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। कंपटीशन में हम ये लोगों के सामने मशीन भी देते हैं जिनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, सर्विसिंग भी अच्छी है और हमारे पास सारी प्रोडक्ट की बास्केट है कि हम ये 4 को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के बीच में सेल्स से ज्यादा कंपटीशन डिलीवरी का ही रहता है, कौन डिलीवरी जल्दी देता है। Great, sir. Thank you very much, sir. I'll go back in the queue. And good luck, sir. Thank you very much. सर मेरे पास चैट पे एक क्वेश्चन आया है, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ हैज द एवरेज रियलाइजेशन पर मशीन मूव्ड इन द लास्ट 2 years excluding the raw material price inflation, and if you can also talk about how will this change in the next 3 years? Exactly, अभी हमारा जो हमने किया था तो 16 to 17 लाख का एवरेज प्राइसिंग आया था। जो सॉरी सर आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है, if you could. एवरेज रियलाइजेशन बिटवीन 16 लाख टू 17 लाख आता है अभी, और वो बढ़ा के हमको मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के बढ़ा के आयरन प्रोडक्ट लाइक वीएमसी, वीटीएल और एचएमसी, और इट डिपेंड्स ऑन टेंडर बिजनेस। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का जो बड़ा ऑर्डर आता है इसमें आयरन मशीन ही होता है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो 50 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ तक होती है। हमने हाईएस्ट एक मशीन 5 करोड़ का बनाया था। तो एवरेज रियलाइजेशन है वो बहुत ही ट्रिकी है। अगर आप बहुत बड़ा मशीन बनाते हो तो आपका 10 मशीन छोटा कम हो जाएगा।
हमने एक HMC बनाया था गवर्नमेंट के लिए, वो D90 टैंक का जो बैरल्स है वो बनाने का, तो वो 5.25 करोड़ का टेंडर था। तो वो हिसाब से अगर हम पकड़े तो 16 to 17 लाख आ रहा है अभी। वो हम लोग हायर एंड प्रोडक्ट को फोकस करके उनको रियलाइजेशन को बढ़ाएंगे, और रियलाइजेशन नहीं बढ़ा तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है कि जो डिमांड है उसको ही बनाओ ज्यादा। नई डिमांड को हम लोग एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के तौर पे ही हम लोग अभी नेक्सा जो है वो हमारा अभी R&D स्टेज पे जा रहा है कि हर एक एरिया में एक एक दो मशीन दो, जिससे कि हमारी सेल्स एंड सर्विस की और मैन्युफैक्चरिंग की, फिर उसके ऊपर हम फोकस करके हमारे जो बाकी के प्लेयर ने अलग डिवीजन किया है, जैसे कि हमने अभी एक 2 डिवीजन किया है, एक टर्निंग मशीन का डिवीजन है और एक PMC का डिवीजन है, जहाँ पे पूरी टीम स्टार्ट टू लेके एंड, प्लानिंग से लेके प्रोडक्शन के लेके क्वालिटी से लेके डिजाइनिंग से लेके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से लेके शीट मेटल से लेके सारा जो वर्टिकल्स है इन हाउस के अंदर वो अलग है। जो BMC का काम करता है वो सारी टीम BMC का ही करे। तो ये फ्यूचर के लिए मैं मतलब कि एवरेज प्राइस जो है वो ट्रिकी है। अगर आपको 5 करोड़ का भी एवरेज प्राइस एक मशीन बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन आपका 10 मशीन छोटा कम हो जाएगा। ओके सर, इसी क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से पूछूं, अगर आपका एवरेज रियलाइजेशन आज 16 से 17 लाख है, ये 2 साल पहले कितना था, और अगर हम इसमें स्टील प्राइस इन्फ्लेशन को हटाएं तो कितना चेंज हुआ है? 13 लाख 14 लाख से ऊपर कभी हमारा एवरेज प्राइस नहीं आता था 3 इयर्स पहले, क्योंकि हम लोगों को टर्निंग मशीन पे ही फोकस किया था। BMC को हमने एक नेक्सा की तरह ही पहले मार्केट में दिया, थोड़ा थोड़ा करके अब मार्केट में एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये मशीन जो है वो सारा मशीन है बहुत ही हाईली प्रिसाइज और बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर कस्टमर का रेफरेंस मार्केट में रिव्यूज, उनका कस्टमर का कंपोनेंट ट्रू आउट, ये सब चीज नहीं हुआ तो आप ये मास प्रोडक्शन के तौर पे इसको बाउंस बैक हो जाता है। तो हमने वो पहले किया कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस बिल्ड कराया कि आप हमारी वर्टिकल मशीन सेंटर भी लो, और उसके अंदर आप टर्निंग जो करते हो वो तो आप करते ही हो, लेकिन ये भी लो, क्योंकि कस्टमर बेस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो उसके बाद हम लोगों का रियलाइजेशन बढ़ा है। ऐसे ही हम लोग हायर एंड मशीन के लिए एक मार्केट को पहले सेल्स एंड सर्विस की टीम नहीं बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे, साल का 5 मशीन 10 मशीन डिफेंस को छोड़ के, और फिर हम लोग जब कैपेसिटी और कैपेक्स की बात करते हैं उसमें हम ये नेक्सा प्रोडक्ट के लिए अलग असेंबली लाइन और कंपोनेंट लाइन। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पहले कॉन्फ्रेंस कॉल से पहले चैट पे आए थे। I'll ask those questions on behalf of the investor. What is your machine capacity per annum today? 1000 से 1200 मशीन हम लोग, जैसे कि 365 डेज तो काम नहीं कर सकते, 26 डेज काम होता है, एक दिवस पावर स्टेगरिंग भी रहता है और हमारा गवर्नमेंट हॉलीडेज भी देना पड़ता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने 75 to 80% के अंदर 1000 से 1200 मशीन का कैपेसिटी में अभी एज ऑन डेट, जो हम लोग एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा रहे हैं। Okay. What is average realization? We have answered, sir. Competitive advantage or entry barriers in the CNC machine business? अगर आप समझो कि कोई भी बिजनेस में डिमांड है तो काफी कंपनीज आ जाती है, तो एक आपके पास जो एसेट्स है, पैटर्न्स है, डिजाइन है, जिसको बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। जैसे कि ये भारत स्विस गवर्नर है कानपुर कोठारी ग्रुप, उन्होंने एक मार्केट कंपनी जर्मनी का टेक ओवर करके ये सब चीज जो हम बना रहे हैं, उन्होंने वहां से वो मशीन्स का डिजाइन और कोलैबोरेशन किया और उन्होंने बाद में टेक ओवर किया। लक्ष्मी मशीन्स वर्क्स ने भी सेम 30 इयर्स पहले कोलैबोरेशन किया, वहां से टेक्नोलॉजी सीखा। राजकोट की ज्योति ने फ्रांस का उरोन जो है वो कोलैबोरेशन किया, बाद में टेक ओवर किया। मैक पावर के अंदर कोई कोलैबोरेशन, कोई टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स जो था वो हमने ऑलरेडी पास कर चुके हैं, क्योंकि मोर देन 10,000 मशीन्स आर वर्किंग इन इंडिया और हमारे पास इन हाउस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हमें कोई कोलैबोरेशन किया कोई चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैक पावर की सबसे बड़ी जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी उनकी स्ट्रेंथ होती है, और उसका हमने एग्जांपल भी दे दिया देश को
कि हमने इंडिया का फर्स्ट स्टीम सीलिंग मशीन, जो कोरोना के टाइम पे अप्रैल में हमारी लॉकडाउन थी, उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री ने हमें 4 कंपनी को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए कि आप चालू करो। हमने अप्रैल में 50 लोगों के साथ इंडिया का फर्स्ट स्टीम सीलिंग मशीन, जो पीपीई किट बनाने के लिए काम आता है, वो गवर्नमेंट को और बाकी डोमेस्टिक किया अप्रैल मई के लॉकडाउन के टाइम पे लास्ट ईयर। और उसमें हमें गवर्नमेंट ने काफी अवार्ड्स भी दिया, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसका इनॉग्रेशन किया, और वो मशीन हमने 7 डेज में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, 7 डेज में। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी। तो वो उसके लिए हमें कोई कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने फास्टेस्ट 1085 मास मीटिंग मशीन्स भी बनाया, जो 1 कलाक में 2000 पीस निकालता है, और फुल्ली सीएनसी है। और मैकमोर के पास वो स्ट्रेंथ है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो अपडेट्स होती है, और जो प्रोडक्ट्स इंडिया में हम नहीं बनाते वो भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमारी चैलेंजेस वो नहीं है। हमारी चैलेंजेस जैसे बताया कि प्रोडक्शन ही चैलेंजेस है, इसमें कंपोनेंट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अदर देन असेंबली। तो एंट्री बैरियर होने की वजह से ही 10 साल में बहुत ही छोटे छोटे 1-2 मशीन बनाने वाले लोग आए, बाकी कोई नहीं आया है। उसका एडवांटेज हमें मिलता है कि इतनी बड़ी डिमांड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को समझो, से फॉर एग्जांपल आज का मेरा मानना है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी के अंदर 14 to 15% ही है। और गवर्नमेंट का विजन है कि 25% मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेके जाने का। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को आगे लेके जाने के लिए मशीन टूल्स इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इसके लिए गवर्नमेंट भी हमें काफी हेल्प करती है, टैक्सेशन में R&D पे सब्सिडीज देती है। जो चीज हम डेवलप करते हैं उसमें भी हमने कभी वो क्लेम नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में हम लोग जब R&D पे ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो काफी सब्सिडीज भी मिलती है हमें उसमें। और दूसरी बात है कि काफी इंपोर्ट कंपोनेंट है, जैसे कि आपने बताया था सीएनसी सिस्टम और बॉल स्क्रू एलएम जो इंपोर्ट हो रहा है, उसमें कस्टम ड्यूटी जो 7.5 है, उसकी जगह पे हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को ओनली 2.5% कंसेशन पे वो कंपोनेंट इंपोर्ट करने देती है गवर्नमेंट। तो ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देनी है तो मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सस्टेन नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात करूं कि एक कंट्री में फॉक्सको का जो फोन है, वो फानुक जापान ने 50,000 मशीन जो इंडिया 3 साल में नहीं बनाएगा, वो एक ही लॉट में उन्होंने वो सप्लाई किया 50,000 मशीन, जो ये फॉक्सवुड को आईफोन का बैक कवर बनाने के लिए। तो सेम हमारी मशीन पे ही बनता है। तो इंडिया को कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो एंट्री बैरियर जो है उसका एडवांटेज तो हमें मिलता ही है। So next question है, can you talk about your labor productivity and cost advantage that we enjoy versus our competitors? जनरली जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें सबसे बड़ा 2 चीज मैंने ऑब्जर्व किया था अब तक का लास्ट 5 इयर्स के अंदर, कि उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 22% आता है, क्योंकि बैंगलोर के अंदर है और कोयंबटूर के अंदर है। और दूसरा, उनका जितना टर्नओवर है उतना ही उनका डेट है। तो ऑलमोस्ट वो डेट पे इंटरेस्ट पे करने में और जो मेट्रोस के ओवरहेड है उसको पे करने में ही उनका सारा मार्जिन निकल जाता है। तो मैंने इन लोगों का 2000 करोड़ और 1000 करोड़ का पैटर्न है वो अडॉप्ट नहीं किया। मैंने ये किया कि कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहे, और डेट जो है वो हम ना ले अभी के टाइम पे, जब तक बहुत बड़ा एक्सपांशन हमें करने की जो हमारी इंटरनल जो है वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो जाए। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटरों के सामने ऑलमोस्ट हमारा 40 to 45% जो ओवरहेड्स है वो कम है। और इंटरेस्ट तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं है मशीन टूल्स की जो इंटरेस्ट पे नहीं करती है। इनका टर्नओवर टू डेट है वो इक्वल है। तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब वो 1000 कर रहे हैं मैं 500 करूँ तो मुझसे ज्यादा पैसा कमाऊं। Okay.
Sir, what's your plan to grow the business over the next 3 to 5 years, and whether we will need any funds to scale up? तो राइट नाउ जो हमारा जो 12 to 18 मंथ तक जो लास्ट ईयर हमने जैसे कि अपने बैलेंस शीट में देखा होगा कि 5 to 6 करोड़ है वो ओन फंड से डाल के थोड़ा गियर अप किया, जो भी कंपोनेंट तकलीफ थी या कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए था वो भी हमने बनाया और ओन फंड से। तो हमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई 1-2 साल तक कोई फंड की रिक्वायरमेंट है। वो अपने ही फंड से हम लोगों को जो कैपेसिटी इंक्रीज करनी है जहाँ पे कंस्टेंट आते हैं वो वेंडर बेस्ड या इन हाउस अपने ही ओन फंड से करेंगे और वो कैपेबिलिटी एक बार डेवलप कर ली कि हम लोग इनके 25 to 30% लेवल पे आ गए, उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंशन का प्लान करेंगे। एट प्रेजेंट कोई हमारा डेट का या बहुत बड़ा एक्सपेंशन का प्लान नहीं। So we'll take the next question from Mr. Gurjot Aliwalia. Please unmute and ask. Hi, thanks for the opportunity. तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है सर। So पहला अराउंड द ऑर्डर बुक। तो आई अंडरस्टैंड करंट ऑर्डर बुक इज अराउंड आई थिंक 112 करोड़, तो विच इज लाइक 1 साल का रेवेन्यू, लास्ट ईयर रेवेन्यू, राइट? तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर हमारा 25% का ग्रोथ टारगेट है फॉर नेक्स्ट 4-5 years, तो लाइक हमारा ऑर्डर बुक शुड नॉट इट बी लाइक मच हायर 2-3 साल का रेवेन्यू वर्थ? आई नो आपका टेंडर बिड भी है अराउंड 130 करोड़, बट मे बी इफ यू कैन शेयर थोड़ा विजिबिलिटी कि कितना potential order book we will be able to get, and is this normal कि machine tool industry में 1 साल तक का ही like order book होता है? because like construction companies वगैरह में 2-3 साल years का जो revenue होता है उसका order book उनके पास होता है। एग्जैक्टली इसमें अलविया सब ये है कि हम लोग की, मैं आपको बताऊं कि ये मंथ में हम लोग से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 मशीन डिस्पैच कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, जिसका उसके सामने 110 to 120 हमें नया ऑर्डर्स आता है। एवरी डे हम डिस्पैच करते हैं और एवरी डे हमें ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंगल पार्टी का ऑर्डर है और सिंगल सेगमेंट का ऑर्डर है, सिंगल कस्टमर का है। ये हमारी एक जयपुर ने आज 2 मशीन बुक किया है, एक मुंबई ने किया है, नासिक ने किया है, कोल्हापुर ने किया है, कलकत्ता ने किया और 3 मशीन आपका है जयपुर का डिस्पैच हुआ है, दिल्ली का डिस्पैच हुआ। तो ये एवरी डे का साइकिल है कि आप जो मशीन बना के डिस्पैच करते हो उनसे ज्यादा आपका नया ऑर्डर बुक आता है एवरी डे। तो ये बुक्स जो है वो कम से कम आपका मेंटेन रहने वाला है जब तक आप बहुत बड़ा गियर अप न करो। और हम लोग अभी भी सेल्स में 2 ही सेक्टर को कवर कर रहे हैं, Tier 3 और Tier 4 में, जो मार्केट साइज का ऑलमोस्ट 60% है। 40% को तो हमने एंटरटेन भी नहीं किया है, जो हम फ्यूचर में करेंगे जब कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। इसमें बड़ी कंपनी को 25-50-100 मशीन एक साथ में थी। तो ऑर्डर बुक रिमेनिंग लगता है कि सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट बैकलॉग बढ़ता जाएगा क्योंकि 2020 न्यू सीरीज जो हमने निकाला ये कैपेक्स डालने के बाद, जिसमें ऑलमोस्ट काफी कंपोनेंट इन हाउस बनने लगा और हमने पूरा 2020 में जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में कार का नया मॉडल लॉन्च होता है, ऐसे ही हमने सारी सीरीज 2020 में रीडिजाइन करके लॉन्च की। क्योंकि पहले हमने जो बनाए थे वो अपने आप बनाए, फिर एक्सपीरियंस से और फैसिलिटी से हमने जो 2020 मॉडल मार्केट में दिया उसमें काफी ऐसे फीचर्स डाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर से बहुत ही बेटर है। तो ऑटोमेटिकली टिकट ऑर्डर से लेके कस्टमर रेफरेंस से लेके हमें ऑर्डर बुक से वो अनबिलीवेबल बढ़ रही है मंथ टू मंथ। तो वो ऑर्डर रिमेनिंग सेम रहेगा। ओके, तो बेसिकली आई मीन ऑर्डर्स विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, आपको बहुत रेगुलरली ऑर्डर्स आते हैं एंड दिस इज नॉट लाइक 1 year वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक, ये मतलब ओनली फ्यू मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी। उसके वो आप रोज 3 बनाते हो मशीन, 4 मशीन का असेंबली करते हो और 5 मशीन का बुकिंग आता है, वो एवरीडे का साइकिल। ये पूरा 110 करोड़ का जो आप देख रहे हैं उसके सामने 50 मशीन का ऑर्डर आ गया तो 40 मशीन डिस्पैच हो गए। तो ये अगर आप 3 साल में आप देखोगे तो वो बढ़ता ही है। और जैसे कि आपका मार्केट में एक्सेप्ट, क्योंकि आप मार्केट साइज का जो रिक्वायरमेंट है उसके सामने आप तो बहुत कम बनाते हो, और एक्सपीरियंस जो है आपका वो टॉप प्लेयर के साथ में है। कुछ मॉडल्स में कुछ सेगमेंट में तो आप मास्टर हो, जैसे कि लाइनर बनाना है तो मैं मशीन लेना पड़ेगा,
डायग्नोज करना है तो मैकमोर का ही लेना पड़ेगा, तो मैकमोर तो दे नहीं पाता है। तो वो एक्सेप्टेंस के कारण ऑर्डर बुक तो बढ़ता ही जाएगा। हमें चैलेंजेस की, जैसे विनय जी ने मुझे पहले भी पूछा था कि आपकी इंटरनल चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, सेकंड चीज, मैंने एक पहले आपका कुछ इंटरव्यू देखा था, आपने शायद एक बार बोला था कि कंपनी का अभी स्केल और साइज थोड़ा छोटा है, तो लाइक बल्क ऑर्डर्स जो एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, इट इज नॉट एलिजिबल कि वो उस ऑर्डर्स के लिए बिड कर पाए। तो ये कितने स्केल के बाद, क्या स्केल है वो, उसके बाद कंपनी एलिजिबल हो जाएगी, और क्या अपॉर्चुनिटी है वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, और क्या मैक पावर वो सब अपॉर्चुनिटीज में आएगा, घुसेगा कुछ टाइम बाद? मैं तो ये सब जैसे कि जब मैं ये फील्ड में आया था एपेक्स डालने के पहले, उस टाइम पे हम स्मॉल स्केल में ही थे। आज की डेट में आप खुश होंगे कि हम लोग अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से लार्ज स्केल के कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अभी लार्ज स्केल में आ गए हैं, तो अभी मैक पावर है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दूसरा, एक्सपोर्ट के अंदर इसलिए किसी ने भी फोकस नहीं किया है, इसीलिए इंडिया का लेस देन 1% का एक्सपोर्ट है, क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक में ही इतनी डिमांड है जिसको फुलफिल करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो एज डिजाइनर जो है 2000 करोड़ किया ये साल में, उन्होंने चाइना में कुछ मशीनें एवरी ईयर 100-150 मशीन बेचा। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है लोलिया साहब, तो आपको एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल वर्टिकल्स क्रिएट करना पड़ता है। उनकी पावर कंडीशंस और वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की नीड जो है वो समझ के आपको एक बहुत बड़ा एक अलग सेटअप करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। जैसे कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर जो है वो एक्सपोर्ट पे ही जीते हैं। इसमें आता है, सबसे बड़ा नाम आता है डेकल एंड माहो, जर्मनी और जापान ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है। फिर आता है वहां पे आस्क ऑटोमेशन यूएस का। ये सबका अगर आप ओडिशा की अगर आप लोग उनका टर्नओवर देखेंगे तो कुछ छोटे कंट्री की जीडीपी जितना है। तो एक्सपोर्ट मार्केट है वो इंडियन मशीन टूल्स बिल्डर के लिए पूरा खुला ही पड़ा है। हमें इंडिया का जो चैलेंजेस है सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ही बढ़ानी है। ये सबसे बड़ी चैलेंज सभी लोगों के लिए। तो एक्सपोर्ट पे तो हम लोग जो करते हैं वो किया है, यूएस में किया है, यूके में किया है, जर्मनी में किया है, टर्की में किया है, थाईलैंड में किया है, लेकिन वो सब जो है वो वेबसाइट थ्रू हमें आके ऑर्डर देके गए, हमने कोई एफर्ट नहीं किया है। तो पूरी मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज है वो कोई ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही है एक्सपोर्ट पे, क्योंकि उनकी रियलाइजेशन के सामने उनकी कैपेसिटी जो है डोमेस्टिक, और वो एक अलग उनको थोड़ा डिवीजन जैसा बनाना पड़ेगा। तो फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता है कि 3-4 साल तक भी इंडिया डोमेस्टिक मार्केट को भी बीट कर पाएगा। हमें गवर्नमेंट ने चैलेंज दी थी 2010 में कि 75% इंपोर्ट हो रहा है, उसको आप कम करो। हम लोग उस पे ही करके अभी काफी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो फ्यूचर में हमारी यही है कि हम जो इंपोर्ट हो रहा है उसको रोके और हम डेवलप करें ये सारी चीज। ठीक है, गॉट इट। एंड एक लास्ट चीज थी डिविडेंड के ऊपर। सो कंपनी के कोई पॉलिसी है अराउंड डिविडेंड, क्योंकि 2 साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया 2018-2019 में, और पिछले 2 साल में डिविडेंड नहीं पे किया। लाइक पिछले साल तो कोविड के कारण, मतलब इमेजिन कर सकते हैं बिजनेस सिचुएशन बहुत खराब थी, बट इस साल मैं सोच रहा था शायद कंपनी डिविडेंड देगी। तो क्या पॉलिसी है डिविडेंड के ऊपर? 2 साल जो डिविडेंड दिया उसमें मैंने कंपनी को बड़ा करने के लिए खुद ने डिविडेंड नहीं लिया, क्योंकि मेजर स्टेक मेरा ही है 70 आसपास का। तो ये साल भी ये रिकमेंडेशन था कि मुझे देना पड़ेगा बहुत ही छोटा अमाउंट, लेकिन हमें अगर जो ग्रो करना है, आगे का फ्यूचर बनाना है, तो कंपनी को जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग ये साल डिविडेंड ना देते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग डेफिनेटली एक डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे और फ्यूचर के लिए उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन।
ओके, तो बेसिकली आप डिविडेंड पॉलिसी शायद इस साल क्रिएट करेंगे और फिर अगले साल से देंगे। ये साल का जो रिजल्ट देख के हम लोग एक पॉलिसी भी डिसाइड और हम लोग आगे का फ्यूचर के लिए एक रेगुलर बेस पे इनको मेंटेन भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। Sir, one question which is an extension of what Gurjot asked you initially. What is the order book execution cycle typically for your products and for customized machines? देखो, कस्टमाइज्ड मशीन्स के लिए तो उनको एडवांस नॉर्मली ऑर्डरिंग कैसे होता है कि उन्होंने हमें मिनिमम कैटलॉग प्रोडक्ट है, जैसे कि स्टैंडर्ड मॉडल है हमारा DX 300 है, जो हम लोग समझो कि 25 मशीन बनाते हैं, 25% एक ही मॉडल निकलता है, तो उसके लिए टोकन अमाउंट 1 लाख रुपीस इज इनफ। उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट, आपको मशीन चाहिए, डिलीवरी चाहिए तो पैसा डाल दो, क्यों में जिसका वो कैटलॉग प्रोडक्ट है वो किसी को भी चलेगा। जो 25 मशीन बनता है उसके सामने 100 मशीन का बुकिंग होता है, तो उसमें हम लोग डिलीवरी में उनको बोलते हैं कि आपको 2 मंथ्स लगेंगे, 3 मंथ्स लगेंगे, लेकिन अगर 2 मंथ्स जिसको बोला था उसका पेमेंट नहीं आया है और 1 मंथ वाले का आ गया तो फर्स्ट कम फर्स्ट, क्योंकि वो एवरी ऑल्टरनेट डे 2 मशीन 3 मशीन बनता है। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड मशीन से इसमें हम लोग के सिवा किसी को नहीं चलेगा, तो मिनिमम 25 to 50% उनको एडवांस देना। नहीं सर, ये मशीन बनाने को कितना दिन लगता है? ये मशीन स्टार्ट टू एंड एवरेज हमारा जो साइकिल है स्टार्ट टू एंड, अगर हम जो बोलते हैं एवरी 4th डे 5th डे में आपका एक टर्निंग 4th डे में और एक VMC वो 5th डे में असेंबल हो जाता है। Okay. Sir, I have some more questions on the chat. ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है जी, एक समझो कि प्रोसेस है, 12 प्रोसेस को डिफाइन किया हमने, 12 प्रोसेस को, तो 1 प्रोसेस के लिए 5 लोगों की टीम होती है, 5 मशीन को 1 प्रोसेस, कोई एक काम एक ही टीम करेगी। समझो बॉल स्क्रूज लगाने वाली टीम है, वो 5 मशीन्स की 5 टीम है, 5 मशीन्स का असेंबली हो रहा है तो वो बॉल स्क्रू ही लगाएगा। उसके बाद एलएम लगाने वाली टीम में वो एलएम ही लगाएगी, वो मोटर्स लगाने वाली टीम में वो मोटर्स ही लगाएगी। ऐसे वो 5-5 का सेट होता है एवरीडे। Okay. कोई एक आदमी पूरा मशीन असेंबल नहीं करता है स्टार्ट टू एंड। सर, एक क्वेश्चन जो चैट पर आया है, आर मेटल कटिंग टूल कंपनीज लाइक सैंडविक एंड केना मेटल सप्लायर्स टू मैक पावर? यस, दे आर आवर सप्लायर्स, दे आर सप्लाइंग टूलिंग्स जो आता है मशीन्स के अंदर, हमारा जो चलाने के लिए टूलिंग्स लगता है, ये दे आर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ टूलिंग्स। वो हमारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनें हैं जिसमें हम कंपोनेंट बनाते हैं उसकी कंज्यूमेबल है ये। Sir, another question which I have received from one of the participants is, what's your view on the market share for Mac Power? How has it been over the last 2 years and what's your aspiration for the next 3 to 4 years? मार्केट का जो ग्रोथ है वो तो आपको मैंने जैसे बताया, मार्केट की जो डिमांड है वो तो इतनी बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट नहीं बनती है वो भी सभी लोग बना रहे हैं, तो उसका अगर हम परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि जितना सेगमेंट ग्रोथ कर रहा है उससे ज्यादा मुझे मार्केट शेयर मिलना चाहिए। What is the market share for machines that Mac Power makes? बहुत कम है ओवरऑल। अगर हम बात करें कि ये जो मशीन है टर्निंग मशीन और VMC की मशीन्स की प्रोडक्शन हुई है अप्रोक्सीमेटली 20 to 20,000 मशीन हुआ है लास्ट ईयर में, तो उसके सामने हमने अभी तक 6 to 7% मार्केट शेयर ही अचीव किया है। Still we have too much room. Okay, sir. Sir, एक क्वेश्चन आपको शुरू में पूछा गया था, the number of machines that we have manufactured and sold this year in FY21. Could you get that answer? लास्ट क्वार्टर हमने 283 मशीन्स पे 50 करोड़ का रेवेन्यू। 283 machines in Q4. Okay.
और एक क्वेश्चन भी आपने मुझे मेल किया था, Q3 and Q4 का margins का difference 0.34. Yeah, that's right. So that was another question which one participant had asked, the reasons for the lower margins in Q4. 0.3% का जो difference है विनीत जी, नहीं, they're talking about I think 8% के levels पे आया है, whereas previously it was around 10% levels. टोटल डिफरेंस जो है 8.6 था, 8.3 है, 8.6 था वो 8.3 आया। करेक्ट। और उसके पिछले साल में सर 9% था सेम क्वार्टर में। ये जो Q4 का जो डिफरेंस है Q3 की कंपैरिजन में वो 0.3 का फर्क है। उसका मेजर रीजन जो है वो दो है, एक CSR का 40 लाख रुपीस वो क्वार्टर में हमें कंप्लायंस के हिसाब से कंपल्सरी करने का था, तो वो CSR में 40 लाख रुपीस दिया। और दूसरा जो लास्ट क्वार्टर में हमने जनवरी फरवरी एंड मार्च में 3 मंथ्स के अंदर जो लॉकडाउन के टाइम पे हमने जो सैलरी नहीं दिया था और नॉमिनल दिया था, समझो कि 10,000 से लेकर 50,000 तक का ही दिया था, पूरा सैलरी नहीं दिया था, क्योंकि हमें पता था नहीं था कि आगे का फ्यूचर क्या है। तो ऑलमोस्ट ये लोग घर पे ही बैठे थे, लेकिन घर चलाने के लिए उनको हमने 10,000 से लेकर 50,000 का एक सीलिंग करके जो सैलरी डिडक्ट किया था, वो हमने जो लास्ट क्वार्टर में वापस अपना बिजनेस ट्रैक पे आ गया, तो हमने वो 3 मंथ्स का जो सैलरी था वो पूरा का पूरा सैलरी काम नहीं किया है, तो भी हमने रिएम्बर्स किया एज अ गुड जेस्चर कि हम आपके साथ में ही, आप हमारे परिवारी हो। तो ये दो रीजन से ये फर्क आया है। So, और एक क्वेश्चन था, what is the capacity utilization level in Q4 and how is it currently in Q1? I don't know if you can answer Q1 because it will be a forward-looking statement, but if you can give a view on Q4, sir, it will be helpful. Normally Q4 जो होता है वो मैच की लास्ट ओवर की तरह ही होता है, आपको पता है कैपिटल गुड्स में उसमें हमेशा ज्यादा ही आता है, तो हमने वो 74-75% के आसपास वो Q4 में कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया। और Q1, Q2, Q3 उसका तो मैं आपको ज्यादा कुछ आप जानते नहीं बता सकता। Sure. Sir, Agastya Dave would like to ask another question. Agastya, please go ahead. सर वही सिंपल सा क्वेश्चन सर, आपने क्वार्टर 4 का नंबर ऑफ मशीन्स बता दिया, लेकिन पूरे साल का नंबर है क्या आपके पास? हाँ, पूरे साल का है 671, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 671 सर, 671। अच्छा, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Participants, if you would like to ask any more questions, please raise your hand. Agastya, you can go ahead. सर एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, ये जो सेकेंड वेव कोरोना आया है उसमें उसके बाद से अभी ऑर्डर्स वापस आने स्टार्ट हो गए, रिकवरी कैसी लग रही है आपको? बैक ऑन ट्रैक है सर? मेरे ख्याल से जो स्प्रिंग दबा था वो बाउंस बैक हुआ है। सॉरी सर? अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। अप्रैल जो था वो नॉर्मली कैपिटल गुड्स के अंदर, जैसे कि विनय जी जानते हैं कि बैलेंस शीट नहीं बना होता है, और ये जो सारी मशीनें खरीदते हैं लोग वो लोन ही लेते हैं, क्योंकि हाई वैल्यूड कैपिटल गुड्स है, और अगर लोन लेंगे वो लोग तभी उनको ये जो सब्सिडीज मिलती है 15+10+ इंटरेस्ट तभी मिलता है अगर वो बैंक से लोन लेते हैं। तो उनका बैलेंस शीट तैयार नहीं है, बैंक का, इंस्टीट्यूशनल का, सिटी का, उनका सबका क्लोजर चलता है, और अप्रैल में थोड़ा कोरोना का भी इफेक्ट था, लेकिन मई के बाद से और जून के बाद से मेरे ख्याल से इंडिया का जो मशीन टूल्स का बुकिंग का और बिलिंग का जो ग्रोथ हुआ है वो मेरे ख्याल से काफी सालों का रिकॉर्ड है। Oh, excellent sir, excellent sir. So अभी June July is almost back to normal sir, actually better than normal. हो गया। Perfect sir, perfect. Thank you very much sir. Thank you for your time sir.
Thanks, Agastya. Since there are no further questions, sir, Rupesh ji, would you like to give a closing comment? So I would like to thank you very much to everyone, especially our IR partners, Vinay, to arranging a beautiful conference and काफी questions भी healthy थे. मुझे ये segment में बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इंडियन मशीन टूल्स का बहुत साल डायरेक्टर भी रह चुका हूँ और गुजरात के मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ और मैं CII फिक्की और गवर्नमेंट की कैपिटल गुड्स सब्सिडी का भी मेंबर रह चुका हूँ. तो ये सेगमेंट को मैंने 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस में बहुत ही. तो आज का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही रिलेवेंट और मैन्युफैक्चरिंग और मेरी जो बिजनेस है उसके रिलेटेड बहुत ही अच्छा रहा मुझे भी एक्सप्लेन करने में क्योंकि कुछ चीजें हैं. मैं मैन्युफैक्चरिंग का आदमी हूँ, मुझे वो फाइनेंस का इतना जो आप क्वेश्चंस करते हैं. तो आज की डेट में मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग सेशन भी था कि मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव दे पाऊं और इन फ्यूचर भी अगर किसी को मुझे कोई ये इसमें से कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आई विल डेफिनेटली मुझे अच्छा भी लगेगा. और मैं आप सबको थोड़ा कोरोना का सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाए तो मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि एक बार आप हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि ये इंडिया के लिए भी प्राउड है, कंट्री के लिए भी है और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं आपकी कंपनी क्या बना रही है कैसे बनाती है क्योंकि एक्सप्लेन करने से एक बार आप देखेंगे. मैं विनय जी को भी बोला था कि पहले आप एक बार आओ तो अच्छा रहा मेरे लिए भी कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को समझाने का मौका मुझे मिला है और कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो आप विनय जी को प्लीज भेजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. It was really a wonderful session with you and you were quite transparent in answering all the questions. So thanks a lot to the management and the team at Mac Power CNC Machines for giving us their valuable time today. And thank you to all the participants for joining on the call. You may all log off now. This brings us to the end of today's call. Thank you, everyone.